نازل ہوئی، آقا 3 سال تک خاموشی سے اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، قرآن کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اللہ اللہ 3 سال کی اس تبلیغ میں سب سے پہلے 4 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کتنے لوگوں نے بولے؟ 4 لوگوں نے۔ جوانوں میں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، بچوں میں مولا علی نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محنتوں سے اور کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ دھیرے دھیرے یہ مصطفیٰ کا قافلہ بڑا ہوتا گیا۔ نعرہ تکبیر۔ آپ حضرات اپنی کرسیوں پر سکون کے ساتھ بیٹھ رہیں، آپ حضرات بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، ممبر والے استقبال کر لیں گے، آپ بیٹھے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ غزرت، فیضان مخدوم مشرق، فیضان معظمی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، آل رسول سید ریحان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنی کرسیوں پر سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر اولاد غوث اعظم شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید ریحان میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کا دیدار کریں، قلب و ذہن کو محفوظ فرمائیں، اور تمامی حضرات مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس 3 سال کی پوشیدہ تبلیغ میں اللہ نے 4 لوگوں کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب تو سید صاحب آ گئے، اب بیدار ہو جائیں۔ کتنے لوگوں کو؟ 4۔ جوانوں میں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، بچوں میں مولا علی نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی محنتوں سے، مشقتوں سے چند اور لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اب اسلام کا قافلہ چل پڑا، اب قرآن پر جان دینے والوں کی جماعت چل پڑی۔ اللہ اللہ 3 سال کے بعد ایک اور آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے سورۃ الشعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریب والوں کو اللہ کا خوف دلائیے۔ جب میرے حضور پر رب نے آیت نازل فرمائی، حضور کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر مکہ، اے لوگ اے مکہ والوں میری بات سنو۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے جوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بچے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بوڑھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں اے محمد بتاؤ تو صحیح کیا کہنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے اس جانب ایک اللہ اکبر بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا، تمہاری عورتوں کو لونی بنا لے گا، تم سب کو قتل کر دے گا، مانو گے؟ تم مکہ کے لوگوں کے جملے سنو۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا محمد تو صادق ہے، محمد تو امین ہے، ہم نے تمہارا بچپن دیکھا، ہم نے تمہاری جوانی دیکھی، ہم نے تمہاری 40 سالہ زندگی کے لیل و نہار دیکھے، محمد کبھی جھوٹ بولتے تم کو نہیں دیکھا، محمد کبھی دغا کرتے نہیں دیکھا، تم کہو گے تو مانو گے۔ اتنا سننا تھا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، پروردگار عالم نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھے سید المرسلین بنا کر بھیجا ہے، اگر تم میرا کلمہ پڑھو گے اللہ تمہیں نجات دے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا، تم نے اگر میرے دین سے منہ موڑ لیا اللہ ان قریب تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ حضرات اتنا سننا تھا، مکہ کے لوگوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی۔ ابو جہل بولا دیوانہ ہے، عتبہ بولا دیوانہ ہے، شیبہ بولا پاگل ہے، کوئی کہنے لگا مجنون ہے، خاندان والے طرح طرح کے اول کھول بکنے لگے۔ رب نے فرمایا محبوب ڈرنا نہیں ہے، محبوب پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ مکہ میں 40 قبیلے تھے، میرے نبی ہر سردار کے پاس گئے، آقا فرماتے ابو جہل تو مان لے، ابو جہل بولا نہیں مانوں گا، امیہ تو مان جا، امیہ بولا نہیں مانوں گا۔ جب 40 سرداروں نے محمد الرسول اللہ کو جھٹلا دیا، میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار
परवरदिगार आलम ये तो मुझे नबी मानते नहीं है, पैगंबर मानते ही नहीं है। मौला कोई मुझे दीवाना कहता है, कोई मुझे मजनू कहता है। रब ने फरमाया हबीब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो तुझे दीवाना कह रहे हैं मैं इनके बेटों को तेरा दीवाना बना दूंगा, जो तुझे मस्ताना कह रहे हैं मैं इनकी नस्लों को तेरा मस्ताना बना दूंगा। इसलिए मेरा इमाम कहता है कितने चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कमजदों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेकसों का सहारा, और जोर से बोले बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर पर अल्लाह ने एक और आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह फरमाते फस्दा बिमा तुमर, महबूब जिस चीज का हुक्म दिया है अलल ऐलान खुलकर बयान करो। अब जब मेरे नबी ने मक्का की गलियों में तबलीग करना शुरू कर दिया, नबी मक्का की गलियों में कुरान पढ़ते, मक्का वाले नबी को देखकर तालियां बजाते, नबी को देखकर सीटियां बजाते, इतना जोर और शोर करते कि मक्का वालों के कानों में कुरान की आवाज नहीं पहुंचती थी। मगर अल्लाह की रहमतें मुस्कुरा रही थी। जालिमों, तुम कुरान के बढ़ते हुए कदमों को रोक न सकोगे, तुम इस्लाम की अजमतों को रोक न सकोगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे पैगंबर को मक्का के लोग कुरैश वालों के डर से कत्ल तो न कर सके, मगर जानते हो मदनी मक्की आका पे कैसे जुल्म करते। नबी अगर काबतुल्लाह में जाते ये जालिम मुस्तफा को थक के मारते, नबी किसी के दरवाजे से गुजरते ये जालिम नबी की राहों में कांटे बिछाते, नबी किसी के मकान के सामने जाते ये जालिम मुस्तफा को गालियां देते। कोई कहता है ये दीवाना है, कोई कहता है ये मजनू है। लोगों तसव्वुर करो क्या हाल था मक्का के लोगों के जुल्म का। पहाड़ होता अपनी जगह से हिल जाता, पहाड़ होता टुकड़ों में बढ़ जाता, मगर ये आमिना का लाल था, ये आमिना का बेटा था जो किसी जुल्म के सामने झुका नहीं, जो किसी जुल्म के सामने डरा नहीं। अल्लाह अल्लाह, आओ हदीस पाक सुना दो। मेरे हुजूर बाजार जुल मजाज में पहुंचे, जब मेरे आका ने बाजार जुल मजाज में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल नबी का दुश्मन आका करीम के पीछे पीछे हो गया। पहले तो इसने नबी को बुरा भला कहा, जब नबी पे असर न पड़ा इस जालिम ने मुस्तफा के ऊपर गर्द उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों सोचो तो सही, हम कितने सीधे सही, हम कितने साबिर सही। अगर कोई तेरे मेरे चेहरे पर गर्द उड़ाने लगे सब्र न कर सकेंगे, बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। इसलिए हुजूर पर इतनी गर्द डाली, आका की डाली मुबारक गर्द आलूद हो गई, आका का चेहरा गर्द आलूद हो गया, आका के कपड़े गर्द आलूद हो गए। कहता तब मक्का वालों इसकी न सुनना, ये दीवाना है, ये पागल है, ये लातों मनात से फिर गया है। मेरे नबी का दिल दुखा, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम अबू जहल मेरा जानी दुश्मन है, अल्लाह ये चैन नहीं लेने देता। रब काबा ने फरमाया महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, हम अबू जहल को मिटा देंगे, तेरे नाम को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमारे लिए माशाअल्लाह कारी मुनाज़िर साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने इनको बड़े फन अता फरमाए हैं, अखलाक और किरदार अता फरमाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अब इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, तवज्जो से के साथ आप मेरी बात को सुने। आज आसान है ना हमारे लिए नमाज़ें पढ़ना, जिसका दिल करे वो मस्जिद में आए, नमाज पढ़े, अजान पढ़े, कुरान पढ़े, मगर सुबह किस्मत के हम न नमाजी बने, न कुरान पढ़ने वाले बने, न मुअज्जिन। ये बात है कि नहीं? मगर याद करो मक्का का वो दौर जहां मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते थे, कुरान नहीं पढ़ सकते थे, कलमा नहीं पढ़ सकते थे, रब के दीन की बात नहीं कर सकते थे। अरे सहाबा तो बड़ी बात है, मेरे हुजूर एक दिन से हले काबा में पहुंचे, जाने के बाद आका ने काबतुल्लाह के सामने नमाज के लिए नियत बांध ली। नबी क़ियाम में है, कुफार भी बैठे, अबू जहल बैठा है, उक़बा बैठा है, शैबा बैठा है। आका करीम ने रुकू किया, जब मेरे नबी सजदे में पहुंचे ना तो अबू जहल जालिम ने कहा इतने लोगों में है कोई जो इब्ने फुला कबीले के ज़िबा किए ऊँट की ओजड़ी लाए और मोहम्मद की पुश्त पर लाकर ओजड़ी को रख दे। लोगों सोचो तो सही मुस्तफा के दीवानों, ओजड़ी कितनी बदबूदार होती है। एक मेरे नबी की पश्ते मुबारक
मुबारक जिससे अल्लाह अकबर मुझको अंबर की खुशबुएं आती थी, एक ऊंट की ओजड़ी जिससे बदबू आती है, जिससे घिन आती है। अबू जहल बोला है कोई जो मोहम्मद की पुष्ट पे ओजड़ी लाकर रखे। एक जालिम खड़ा हुआ जिसका नाम उकबा इब्ने उब्बी मुईद था। ये गया दौड़ा दौड़ा और इब्ने फुलक कबीले की ऊंट की ओजड़ी लेकर आया। इस जालिम ने नबी की पुष्ट मुबारक पर ओजड़ी को रख दिया। अल्लाह अल्लाह, ओजड़ी वजनदार थी, कुछ मेरे हुजूर की पुष्ट पर रख दी, कुछ मेरे हुजूर के कांधे मुबारक पर रख दी। अल्लाह अल्लाह, नबी सिजदा कर रहे हैं, नबी रब की पाकी बयान कर रहे हैं। उधर मक्का के जालिम नबी को देखकर सीटियां बजा रहे हैं, नबी को देखकर तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो तो सही दीवाने की, देखो तो सही मजनू की। अल्लाह अल्लाह, इनकी मजाक का हाल ये था, ये एक दूसरे के ऊपर ठट्टे मारते थे, गिर गिर पड़ते थे। नबी का दुख देखने वाला कोई नहीं, नबी के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, नबी के टुकड़े को सुनने वाला कोई नहीं। मेरे नबी सजदे में है। जब किसी ने ओजड़ी को पुष्ट से अलग न किया, उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी अभी कमसनी का आलम है, अपने घर से निकल कर आई। जब आकर सहने काबा में देखा तो हाल ये था, मक्का के जालिमों ने ओजड़ी हुजूर की पुष्ट पर रख दी है और ठट्टे मार मार कर हंस रहे हैं। हजरत फातिमा ने उस ओजड़ी को हुजूर की पुष्ट से हटाया और मक्का के जालिमों की जानिब देख कर कहती है, जालिमों क्या तुम उसकी पुष्ट पर ओजड़ी रख रहे हो जो सजदों में तुम्हारे लिए दुआएं करता है, तुम्हारे ईमान की दुआ करता है, तुम्हारे लिए जन्नत की दुआ करता है। हजरत आमिना ने मुस्तफा का इंतजार किया। जब मेरे आका ने सलाम को फेरा था, हजरत आमिना मुस्तफा के सीने से लग गई और मेरे नबी की पेशानी को चूम कर कहती है, ऐ मेरे बाबा कब तक ये जुल्म होता रहेगा? ये जालिम कभी आपको मजनू कहते हैं, कभी दीवाना कहते हैं, कभी पागल कहते हैं। ऐ मेरे बाबा, आप गलियों से गुजरते हैं, ये आपके पत्थर मारते हैं, आप रास्तों से गुजरते हैं, ये आपकी राहों में कांटे बिछा देते हैं। ऐ मेरे बाबा, ये जालिम आपका मजाक बनाते हैं, आपको देखकर क्लैपिंग करते हैं। ऐ मेरे बाबा, कब तक ये जुल्म होता रहेगा? क्या हमारे लिए कभी सुबह की सुबेदी नमूदार नहीं होगी? जब मेरे आका ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा, मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी ने हजरत फातिमा को सीने से लगाया और आसमान की जानिब मेरे हुजूर ने देखा, नबी की आंखों में आंसू हैं। नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश। अल्लाह कुरैश वालों को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर नबी ने एक एक जालिम का नाम लिया। नबी फरमाते, मौला अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, उतबा को अपनी गिरफ्त में ले ले। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने जिन जिन के लिए बद्दुआ की थी, मैंने देखा बदर के मैदान में अबू जहल का लाशा कहीं पड़ा था, उमैया का लाशा कहीं पड़ा था, शैबा का लाशा कहीं पड़ा था। नबी ने फरमाया, इनके लाशों को गले में डाल दो। गले में लाशें डाल दिए गए। नबी फरमाते हैं, अबू जहल तू कहता था मोहम्मद को मिटा दूंगा, देख तू मिट गया है, मगर आमिना का लाल जिंदा है। इसलिए मेरा इमाम कहता है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे ना मिटा है न मिटेगा कभी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम मशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। ये जुल्म नबी तक नहीं था, इसी मक्का में एक सरदार था जिसका नाम उमैया था। क्या नाम था? बेदार होने के लिए पूछ लो, क्या नाम था? उमैया इसमें फारसी गुलाम था जिसका नाम बिलाल हबशी था। जब जब मोहब्बत रसूल की बात आती है, बिलाल सर फहरिस्त मिलते हैं। गुलाम था उमैया का, मगर दिल दे दिया था आमना के लाल को। दिल किसे दे दिया था? आमना के लाल को। उमैया हजरत बिलाल के गले में रोजाना सुबह को रस्सी डालता, मक्का के चौराहों पर घसीटता, बिलाल की पुष्ट पे लाठियां बरसाई जाती। फिर पूछा जाता, बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते थे, अहद अहद, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को एक दिन निकाला गया, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाली गई, हजरत बिलाल की पुष्ट पर लाठियां बरसाई जाने लगी। बिलाल से पूछा, बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कहना था। हजरत बिलाल पर चारों जानिब से पत्थरों की बारिश हो गई, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, तमाम जिस्म के कपड़े खून से लथपथ हो गए, पूछने लगे,
लगे, बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा। बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह। उमैया का गुस्सा भड़क उठा, इसने कहा बिलाल को मक्का के बाहर लेकर चलो। जिन्होंने मक्का देखा है, वहां का सहरा देखा है, रेत देखकर जानते हैं कितना गर्म होता है मक्का का रेत। हजरत बिलाल को मक्का के रेत पर घुटनों के बल बिठाया गया, इतने कोड़े मारे गए, तमाम पुष्ट में बिलाल की जख्म हो गए। उमैया कहने लगा बिलाल बता अब भी पड़ेगा कलमा। बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया ने कहा बिलाल को जमीन पर लिटा दो। हजरत बिलाल को जमीन पर लिटा दिया गया, कमीज को उतार लिया गया। अल्लाह अल्लाह। उमैया कहने लगा बता बिलाल अब भी पड़ेगा मुस्तफा का कलमा। जब सहरा की रेत ने बिलाल को काटा, अल्लाह अल्लाह चाहते थे, बिलाल का दिल कहता था बिलाल पलट जा, मगर इस कहता था बिलाल सबर कर, इसलिए कि जितना इम्तिहान लिया जाएगा इतना ही मुस्तफा के करीब हो जाएगा, इतना ही अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। तो दोनों जवान दौड़े दौड़े गए, एक वजनी पत्थर को उठा लिया, हजरत बिलाल को अल्लाहु अकबर चित लिटा दिया गया, कमीज को निकाल लिया गया, बिलाल के सीने पे पत्थर को रख दिया गया। पत्थर इतना वजनी था, बिलाल की आंखें उबलने लगी, बिलाल की सांसों की डोर टूटने लगी। मक्का के लोगों ने देखा अगर बिलाल मर जाएगा तो जुल्म किस पर करेंगे। पत्थर को हटा लिया गया, चंद सांसें गुजरी मगर बिलाल को होश न आया। जब थोड़ी देर के बाद बिलाल होश न आए, उमैया ने कहा बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा। तो जानते हो हबश के बिलाल ने कहा था, मुस्तफा के आशिक ने कहा था उमैया आज पावर तेरे पास है, कल अल्लाह पावर बिलाल को देगा। आज ताकत तेरे पास है, कल अल्लाह ताकत बिलाल को देगा। आज तेरी चल रही है, कल बिलाल की चलेगी। उमैया कहने लगा खाता मेरा है कलमा मोहम्मद का पढ़े, कलमा मोहम्मद का पढ़े, घर में मेरे रहे कलमा मोहम्मद का पढ़े। बिलाल ने आंखों में देख कर कहा था उमैया जबान तेरी है तू ले ले, आंखें तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे हैं तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा। दिल तो मैंने सैयदुल अंबिया को दे दिया है, दिल तो मैंने मदीने के ताजदार को दे दिया है। मेरा इमाम कहता है ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि मैं सर में सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया कहती है लैला मजनू की मोहब्बत देखो, शीरी फरहाद की मोहब्बत देखो, मैं कहता हूँ मोहब्बत देखनी है तो बिलाल की देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत देखनी है तो बिलाल कहते करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। मक्का वालों ने सोचा मारा, मगर मुस्तफा का कोई सहाबी इस्लाम से ना हटा, आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दो तीन हदीस से सुना भी इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। मक्का वालों ने सोचा मोहम्मद को सताया, मोहम्मद ना माने, सहाबा को सताया, सहाबा ना माने, चलो मोहम्मद से सुलह करें। कहने लगे सुलह कैसे होगी, बोले अबू तालिब के सब पास चलो, धमकाएंगे, सामना करेंगे, शायद अबू तालिब के समझ में आ जाए। मक्का के जितने सरदार थे अबू तालिब के पास पहुंचे, जाने के बाद कहते अबू तालिब समझा लो अपने भतीजे मोहम्मद को, इसलिए कि मोहम्मद हमारे खुदाओं की मजम्मत उड़ाता है, मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। अबू तालिब या तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने मोहम्मद को हमारे हवाले न किया तो तुम भी उन्हीं की जानिब हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम नहीं माने, तुम्हारा भतीजा नहीं माना, याद रखो तुम दोनों को देख लेंगे, तलवार उठा लेंगे। इतना सुनना था जनाब अबू तालिब का, आप समझ गए मामला खतरनाक हो चुका है, आप समझ गए मामला संगीन हो चुका है। जब मेरे आका शाम को तशरीफ लाए तो अबू तालिब कहते हैं ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद तू जानता है मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है, ऐ मोहम्मद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भतीजे मुझ पे इतना जुल्म न करो कि मेरा बूढ़ा जिस्म उसको उठा ना सके। आका फरमाते चचा क्या बात है, तो अबू तालिब कहते हैं मोहम्मद आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अबू तालिब से आधी बात कह सके। आज आए थे मक्का के सरदार, कह रहे थे या तो मोहम्मद को समझा दो वरना तुम्हें भी देख लेंगे, वरना तुम्हारे भतीजे को देख लेंगे। अबू तालिब ने पेशानी को चूमा, रोकर कहते मोहम्मद थोड़े दिनों के लिए इस्लाम की तबलीग के लिए खामोश हो जाओ, इस्लाम की तबलीग को मौकूफ कर दो। इतना सुनना था मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि आज तक ज़ाहिरी मुइनो मददगार अगर आका के कोई थे तो अबू तालिब थे। हर परेशानी में जिन्होंने अब तक साथ दिया वो अबू तालिब थे।
रहे, नबी ने देखा अबू तालिब के कदम उखड़ रहे हैं, आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते मेरे चाचा कह दो इन मक्का के जालिमों से, ये तो मक्का वाले हैं, अगर दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें आ जाए मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे चाचा कह दो मक्का वालों से एक हाथ में सूरज ला कर रख दे, दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दे, मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं या तो मैं अपने दीन को दुनिया के घर घर तक पहुंचा दूंगा या मजहब इस्लाम पे शहीद हो जाऊंगा। सुन्नियों देखो तो सही, मेरे नबी का दीन चला, अरब से निकला मिस्र पहुंचा, मिस्र से निकला फारस पहुंचा, फारस से निकला पाकिस्तान हिंदुस्तान पहुंचा, श्रीलंका पहुंचा। आज दुनिया का कोई खित्ता देख लो, कोई धर्म मिले न मिले मगर नबी का धर्म जरूर मिलेगा, कोई दीन मिले न मिले मगर इस्लाम जरूर मिलेगा, कोई किताब मिले न मिले मगर कुरान जरूर मिलेगा। पता चला हर मुल्क में नबी का दीन जिंदा है, हर कस्बे में नबी का दीन जिंदा है, हर शहर में नबी का दीन जिंदा है। मेरा इमाम तो यूं कहता है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसी बात है तो फिर इस्लाम की तबलीग कर, तालिब जिंदा है कोई बाल भी का नहीं कर सकता। अब तालिब ने फरमाया मोहम्मद तक पहुंचने से पहले मेरा मुकाबला कब आ रहा है? जब अबू तालिब मानने तैयार नहीं, मोहम्मद भी मानने तैयार नहीं, और दीवानों का हाल ही दीवाने तो मरते मिटने तैयार थे, कहने लगे पंचायत करो पंचायत। उर्दू में कहती तो कॉन्फ्रेंस करो। इसी मक्का में एक घर था, मतलब क्या था, पंचायत घर, जिसको लोग कहते थे दारुल नदवा। दावत पहुंच गई कि तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। हदीस पाक में आता है मक्का का हर बहादुर, हर बाअसर इंसान, हर सरदार दारुल नदवा की कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। जब ये बैठा दारुल नदवा में तो कम्बल और एक पूरा बैठा, कौन बैठा था? इसे मक्का वालों ने पूछा भाई तू कौन? मक्का के बाजार में नहीं देखा, काबे के शहर में नहीं देखा, तो इसने कहा मैं शेख नज्द हूँ, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ हूँ, मैं भी तुम लोगों के सामने मोहम्मद को मिटाने की तरकीब पेश करूंगा। लोगों ये शेख नज्द की शक्ल में इबलीस था जो मुस्तफा को मिटाने की तरकीब में शामिल होने आया था। अल्लाह अल्लाह, जब तमाम लोग बैठ गए इबलीस को मसनद दे दी गई। इबलीस ने कहा पंचायत को शुरू करो, बैठक को शुरू करो। तो अल्लाह अकबर, सबसे पहले मक्का का एक मुशरिक उठा। उठने के बाद इसने कहा मेरी तरकीब ये है, मेरी तदबीर ये है, मोहम्मद को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक छोटा सा सुराग खोल दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए, उसी में से खाना दिया जाए, उसी में से पानी दिया जाए। जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान नहीं सुनाएंगे, जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, जान तो इब्लीस ने क्या कहा, तुम्हारी तरकीब काम नहीं करेगी, इसलिए कि तुम कैद को देख रहे हो, तुम दीवानों को देख रहे हो। अरे मोहम्मद के दीवानों को क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है अबू बकर सिद्दीक का इश्क? क्या तुम्हें मालूम नहीं है फारूक आजम का इश्क? अगर मोहम्मद के दीवानों को पता चला मोहम्मद को कैद कर दिया है, जान दे देंगे, मगर नबी को कैद में नहीं रहने देंगे। अल्लाह अकबर। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी किसी काम की नहीं। उसके बाद अबुल अस्वद रबिया खड़े हुआ, उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। जब मोहम्मद मक्का में नहीं रहेंगे हम कुरान की तिलावत को सुनने से बच जाएंगे। शैतान कहने लगा लानत है तेरी तरकीब पर, इसलिए कि तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने कैसा असर दिया है मोहम्मद की जबान में। जिससे भी बात करेंगे उसी को अपना दीवाना बना लेंगे, उसी को अपना मस्ताना बना लेंगे, जिससे बात करेंगे वो उनका गुलाम बन जाएगा। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी मुस्तरद की जाती है। उसके बाद नबी का सबसे बड़ा दुश्मन उठा, जिसको दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है। अबू जहल ने कहा मेरे जहन में ऐसी तरकीब है जो किसी के जहन में नहीं है। तमाम लोगों के कान खड़े हो गए। अबू जहल ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ मक्का में 40 कबाइल है, हर कबीले से एक नौजवान को इकट्ठा किया जाए जो बहादुर हो, जो शुजा हो, जो तलवार का धनी हो, जो कल को जिगरा रखने वाला हो। फिर ये 40 नौजवान मिलकर मोहम्मद के घर को मुहासरे में ले ले। जब मोहम्मद सो रहे हो या मोहम्मद अपने मकान से निकले, एक साथ 40 तलवारें मोहम्मद के ऊपर गिरे, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए चले। जब 40 लोग मोहम्मद को कत्ल करेंगे हमारे सामने
कुरैश के लोग फिर हिम्मत न करेंगे बोलने की। जब अबू जहल ने इतना कहा, इब्लीस अपनी मस्जिद से खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा, खुशियां मनाने लगा, मगर वो भूल गया था कि दुनिया कत्ल करना चाहे, रब बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर तस्वीर हो रही थी मोहम्मद को मिटाए जाए, मेरे अल्लाह ने जिब्रील को मुस्तफा की बारगाह में भेज दिया। रब ने फरमाया जिब्रील जा, और हमारा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा। जिब्रील आए, सलाम पेश किया, मेरे आका ने जिब्रील के सलाम का जवाब दिया, अल्लाह के सलाम को कबूल किया। आका फरमाते जिब्रील क्यों आए हो? तो जिब्रील कहते आका दुश्मनी बढ़ चुकी है, अब मक्का में रहना बेहतर नहीं है, अल्लाह चाहता है आप मक्का छोड़े मदीना को हिजरत करें। अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाना चाहता है। अल्लाह अकबर, देखे तो सही, मदीना आज भी इस्लाम की राजधानी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ठीक है। इतना सुनने के बाद आका अपने घर से निकले और कहा गए सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे को खटखटा दिया नबी ने। जब दरवाजा खटखटाया मुस्तफा ने, अबू बकर सिद्दीक समझ गए आका आए हैं, दरवाजे को खोला। नबी फरमाते अबू बकर मुबारक हो, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया है। अबू बकर सिद्दीक कहते आका गुलाम भी चलेगा। नबी फरमाते अबू बकर तुम भी चलोगे। अबू बकर ने इतना सुना, रोने लगे, बिलखने लगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, बाबा हिजरत का मौका ही रोने की जगह नहीं है, ये तो खुशियां मनाने की जगह है। अबू बकर सिद्दीक कहते बेटी ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं, इसलिए कि नबी का हम सफर अबू बकर भी बनेगा। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, 4 महीने से 2 ऊँटनियों को पाल रहा हूँ, बबूल की पत्तियां खिला खिला कर, एक आपकी सवारी है, दूसरी अबू बकर सिद्दीक की सवारी है। नबी फरमाते सवारी लेंगे मगर बदले में कुछ न कुछ देंगे। अर्ज करते आका मेरी जान आप पे कुर्बान है, मेरा मान आप पे कुर्बान है, मेरी औलाद आप पे कुर्बान है। अबू बकर आपसे पैसे क्यों कर लेगा? नबी फरमाते हमारी मर्जी है। आका फरमाते तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। नबी वापस घर को पलटे, पलटने के बाद सामान तिजारत को नबी ने तैयार किया, सफर के सामान को तैयार किया। जब सामान का तमाम सामान सफर तैयार हो गया, नबी फरमाते हैं ऐना लिखे अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी ने अली की पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाते हैं ऐ अली आज हिजरत मुस्तफा की होगी मगर बिस्तर मेरे अली का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान माशाअल्लाह। बिस्तर जाने विलायत बोलते बोले अली का। अली जानते थे कि तलवार 40 नबी को मुहासरे में लिए है, कभी भी कत्ल किया जा सकता है, मगर नबी ने एक जुमला और बोला। नबी फरमाते अली सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानत वापस करना, मदीना हमारी बारगाह में चले आना। सुभान अल्लाह। तो बिस्तर अली के लिए सेज बन गए, इसलिए कि अली जानते थे कभी भी कत्ल हो सकता हूँ, आज की रात नहीं, क्योंकि जमीन और जमा बदल सकती है, ज़बान मुस्तफा कभी नहीं बदल सकती। नबी फरमाते सुबह को उठना, मदीना आना। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आका वक्त हिजरत हो चुका है, आप तैयारी करें। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार को जिब्रील ने बताया आका करीम 40 तलवारें आपके मुहासरे में हैं, 40 नौजवान कत्ल करने के लिए तैयार खड़े हैं। या रसूल अल्लाह बड़े खतर का सफर है, या रसूल अल्लाह बड़ी कुल्फतों का सफर है। मेरे नबी मुस्कुराए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी खाक जमीन से उठाई, अपने अल्लाह अकबर मकान से उठाई और नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ऐ लोगों अगर मजबूरियों ने घेर लिया हो तो कुरान पढ़ो, कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, कुरान बड़ी रिफत वाली किताब है। अगर बीमारियों ने घेर लिया हो तो कुरान पढ़ो, अगर दुश्मन चारों जानिब से चढ़ दौड़ पड़े हो तो कुरान पढ़ो, अगर कोई पुरसाने हाल न हो तो कुरान पढ़ो। मेरे हुजूर ने कुरान की इब्तिदाई आयत सूरह यासीन की पढ़ी, पढ़ने के बाद हुजूर ने खाक उठाई अपने मकान से, कुफ्फार के चेहरे पर फेंक दी। मेरे नबी निकल कर चले गए मगर किसी काफिर को नजर नहीं आए, किसी मुशरिक को नजर नहीं आए। मुस्तफा की इस अदा को जब परवरदिगार आलम ने देखा, रब काबा फरमाता है वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। नबी तुमने जो कंकरी फेंकी थी हाथ मुस्तफा का था मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी।
سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا, دونوں غار سور میں جا کر تشریف فرما. آپ چھوٹی چھوٹی تو حدیثیں سنو, اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. نبی نے ابو بکر صدیق کو لیا, غار سور میں دونوں چلے, جا کر آرام فرما ہوئے. مگر یہ 40 نوجوان انتظار کر رہے کب نبی گھر سے نکلے, کب قتل کریں. صبح ہوئی, ایک انسان کا ادھر سے گزر ہوا, اس نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے مصطفیٰ کو قتل کریں گے, نبی جب نکلیں گے قتل کریں گے. اس نے کہا دیوانو, تم یہاں نبی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے محمد کو مکہ کے باہر جاتے دیکھا, میں نے محمد کو مکہ کے باہر جا کے دیکھا ہے. اللہ اکبر, چاروں جانب ہڑبھڑ مچ گئی. محمد کو تلاش کرو, محمد کو تلاش کرو. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق نے غار سور کو صاف کیا. غار سور کو صاف کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کوئی پتھر بھی نہیں بچا ہے, کپڑا بھی نہیں بچا ہے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. ابو بکر صدیق نے اپنی ایلی سے سوراخ کو بند کر لیا. سوراخ کو بند کرنے کے بعد ابو بکر صدیق فرماتے آقا تشریف لے آئیے. میرے نبی اندر گئے. ابو بکر کی گود میں آقا نے اپنا سر مبارک رکھا, سر اقدس رکھا. حضور آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کبھی قسمت پہ ناز کریں, کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے اور مسکرا کر کہہ رہے ہیں ابو بکر مبارک ہو, کائنات کا دولت تیری گود میں تشریف فرما ہے, تمام دنیا کی رعنائیت تیری گود میں تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق ابھی اسی جلوے میں کھوئے ہوئے تھے. اللہ اللہ. علماء فرماتے ہیں اسی غار میں ایک سانپ ہزاروں سال سے مصطفیٰ کے دیدار کا منتظر تھا. جب نبی کے دیدار کا وقت قریب آیا, ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو سوراخ پر رکھ لیا. سانپ نے کہا ابو بکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لے, تو نبی کا دیوانہ مستانہ ہے, میں تجھے کاٹنا نہیں چاہتا. مگر ابو بکر صدیق کہتے تھے جان جائے تو جائے, مگر نبی کی نیند میں خلل آئی. ابو بکر صدیق کو گوارا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب سانپ نے ابو بکر صدیق کے کاٹا, فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کہ دنیا بھر کے پہاڑ میرے سر پر رکھ دیے گئے ہو. تکلیف کا کوئی عالم نہیں تھا, کلفت کا کوئی حساب نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے پیر نہ ہٹایا, دوسری بار سانپ نے ڈسا, پیر نہ ہٹایا, تیسری بار سانپ نے ڈسا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے جسم میں جو تکلیف تھی وہ آنسو کی شکل میں میری آنکھوں سے بہی, بہنے کے بعد میرے رخسار سے بہتی ہوئی نبی کے رخسار مبارک پر گری. وہ رخسار جس کو قرآن نے مدحا کہا ہے. نبی بیدار ہو گئے, فرماتے ہیں من یبکی کا یا ابا بکر, ابو بکر تجھے کس نے رلایا ہے؟ عرض کرتے آقا سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی فرماتے ایڑی ہٹا, اس لیے کہ تو بھی دیوانہ ہے, وہ سانپ بھی دیوانہ ہے. جب ایڑی کو ہٹایا گیا, نبی فرماتے ابو بکر ذرا ایڑی تو دکھا. ابو بکر صدیق نے ایڑی دکھائی, نبی نے لوا میں دہن لگا دیا. ابو بکر فرماتے ہیں لوا میں دہن کا لگانا تھا, یوں لگا جیسے سانپ نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا. شاعر کہتا ہے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے, جب مسئلہ ہستی پہ سرکار نظر آئے, جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ, دنیا کے اطباء بھی بیمار نظر آئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مخدوم اشرف. سبحان اللہ. ایک حدیث سنا کر اختتام کی جانب مکہ والے تلاش کرنے چلے تھے. رب نے فرمایا مکری جالا بندے, فرمایا رب نے مکری جالا بندے, کبوتری انڈے دے دے. قرآن کو پڑھے, قرآن کہتا ہے وَإِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر کوئی ہے تو مکڑی کا گھر ہے. رب نے سب سے کمزور گھر سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی. جب مکہ والے گئے کہنے لگے محمد اس غار کو ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا, کبوتری اڑ گئی ہوتی, انڈے پھوٹ گئے ہوتے. مگر وہ جانتے نہیں تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ابو بکر صدیق کہتے آقا مکہ والے اتنے قریب ہیں, اگر پیر دیکھتے تو پکڑ لیں گے. نبی فرماتے لا تحزن, قرآن نے بیان کیا, نبی فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈر مت, تیرے میرے ساتھ اللہ, اور اللہ جس کے ساتھ کوئی پکڑ سکتا ہے, کوئی مٹا سکتا ہے. اب نبی غار سور سے اترے, آخری حدیث پاک, نبی راستے کو دور کر کے جا رہے تھے, سمندر کے قریب قریب جا رہے تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, نبی کو پیاس لگی, بھوک لگی. مقام قدیم پر مصطفیٰ نے نظر اٹھائی تو آپ کو صحرا میں ایک جھوپڑی نظر آئی.
नाम के जो बूढ़े और बूढ़ी का था, अल्लाह अल्लाह इनका काम क्या था? ये मुसाफिरों को खाना खिलाते थे, ये मुसाफिरों को पानी पिलाते थे। नबी गए और आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी अगर तेरे पास खाने को हो तो दे, हम भूखे हैं, अगर पीने को हो तो पानी दे, हम भूखे हैं। बूढ़ी ने कहा, वो आने वाले शहजादे, वो आने वाले जवान, पानी खत्म हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है। मेरे नबी ने देखा खैमे में एक बकरी बंदी है जो कमजोर है, जो लागर है, जो ज़ईफ है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी अगर तू इजाजत दे तो हम बकरी को धोकर इससे दूध निकाल लें। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। उम्मे माबद कहती है, कैसी बात करता है जवान, कई माह गुजर गए, इसने एक बूंद दूध नहीं दिया है। नबी फरमाते, इजाजत तो दे, इजाजत देना तेरा काम है और दूध निकालना आमना के लाल का काम है। इतना सुनना था। उम्मे माबद ने धीमे से लहजे में कहा, ऐसी बात है तो निकाल ले दूध। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने कहा, बर्तन तो लेकर आ। उम्मे माबद बर्तन लेकर आई। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। जब बकरी के थनों पे हुजूर ने हाथ रखा तो अल्लाह ने थनों में दूध पैदा कर दिया, बर्तन भर गया। नबी फरमाते, उम्मे माबद शेर होकर थी, उम्मे माबद ने खूब पिया, अबू बकर सिद्दीक ने खूब पिया। मुस्तफा ने फरमाया, बर्तन लेकर आओ। दूसरा बर्तन आया, भर गया। तीसरा बर्तन आया, भर गया। चौथा बर्तन आया, भर गया। जितने भी उम्मे माबद के पास बर्तन थे सबके सब भर गए, मगर बकरी दूध देती रही। मेरे नबी ने दूध पिया, इजाजत लेकर तशरीफ ले गए। मेरे नबी तो चले गए, मगर कुछ सातों के बाद अबू माबद आए। जब घर में दूध बर्तन भरे देखे, कहने लगे दूध कहाँ से आया? तो उम्मे माबद कहती है, आया था एक अजमतों वाला, जिसका चेहरा बेमिसाल था, जिसका देखना बेमिसाल था। उसका चेहरा ऐसा था कि 14वीं रात का चांद देखे तो देखकर शर्मा जाए। उसके लब ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है। जब वो हंसता था यूं लगता था बहार आ गई हो। उसकी गर्दन लगती थी जैसे कि अल्लाह अकबर चांदी से बनी है। वो मुस्कुराता था, बेमिसाल लगता था। वो बोलता था, बेमिसाल लगता था। उसके जिस्म की खुशबू का आलम ये, मुझको अंबर भी उसके जिस्म की खुशबू का सदका मांगे। अबू मामद फरमाते, चल, ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा था, ये सैयदुल अंबिया था। उम्मे मामद का हाथ पकड़ा, नबी को जा लिया। कहते, मोहम्मद मदीना बाद में जाना, पहले हम दोनों को कलमा पढ़ के मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम मशरक, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, सभी अज़ान की तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। बेटा बातें मत करना, सवाब के लिए आए हो, सवाब कमा वरना घर जा कर। ये जगह बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि दीन की बात सुनने के लिए। आप बीच में बोलेंगे तो आप बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूँगा? इसलिए तवज्जो से सुने ताकि अल्लाह हमको नेकियां अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को कमाल दिए, अजमतें दी, ताकतें दी, बुलंदियां दी। ये रसूल की जिंदगी का, नबी की जिंदगी का दूसरा पहलू ये है कि मक्का के लोगों ने मुस्तफा को दीवाना कहा, मजनू कहा, पागल कहा, पत्थर मारे। मक्का छोड़ने पर आका को मजबूर कर दिया। कभी नबी को शियबे अबी तालिब में 3 साल तक कैद रखा, जहाँ खाना नहीं था, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ दर्द था, वहाँ भूख थी, वहाँ प्यास थे, वहाँ आंसू थे। मगर फिर भी मेरे हुजूर ने कहा, अल्लाह तू जिस हाल में रखेगा, तेरा मोहम्मद इसी हाल में राजी है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तू जिस हाल में रखेगा, तेरा अबू बकर इसी हाल में राजी है। देखो तो सही, जिन्होंने नबी को कैद किया था वो कहते थे मुस्तफा को मिटा देंगे, वो कहते थे मुस्तफा को खत्म कर देंगे, मगर अल्लाह की रहमतें उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। इसलिए कि रब कह रहा था, इस्लाम किसी दुनिया वाले का दीन नहीं है, कुरान किसी दुनिया वाले की किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है। अबू जहल मिटेगा, उमैया मिटेगा, शैबा मिटेगा, अगर नाम बाकी रहेगा तो आमना के लाल का नाम बाकी रहेगा। अगर बाकी रहेगा अबू बकर सिद्दीक बाकी रहेंगे, अगर बाकी रहेंगे फारूक आजम बाकी रहेंगे। देखो तो सही, कुफ्र मिट गया, जुल्म मिट गया, मक्का के कुफार मिट गए। आमीना का बेटा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मेरा ईमान है। आमीना का लाल सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। बरेली का ताजदार कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इंशाअल्लाह मैं बज़ाब्ता अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ।
आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा कमाल दिए, मगर इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी के इम्तिहान लिए गए तो उस ज़ाते गिरामी का नाम मोहम्मद है। सबसे ज्यादा किसी को आजमाया गया तो उस ज़ाते गिरामी का नाम मोहम्मद है। अल्लाह की कसम, मुस्तफा के इम्तिहान देखो, अभी मेरे पैगंबर अपनी वालिदा के शिकम में है, नबी अभी 2 माह नबी का नूर उनकी वालिदा के शिकम में परवान चढ़ा है कि आपके वालिद का सरजमीन मदीना पे इंतकाल हो गया, नबी वालिदा के शिकम में है, मुस्तफा का इंतकाल हो गया। ये पहला इम्तिहान था मदीने के ताजदार का। मुस्तफा करीम पैदा हुए, जब आका दुनिया में आए तो अल्लाह ने दुनिया को मुस्तफा की वजह से कमाल अता फरमाया, दुनिया को मुस्तफा की वजह से खूबियां अता फरमाई, दुनिया को मुस्तफा की वजह से खुशियां अता फरमाई। जब आका करीम की उम्र 6 साल की हुई, अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा ने आपके दस्ते मुबारक को पकड़ा और अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर ले गई। जब दोनों माँ बेटे वापस आ रहे थे, आका की उम्र 6 साल की है, हजरत आमिना का मदीना के करीब इम्तिहान हो गया, हजरत आमिना का मदीना के करीब इंतकाल हो गया। लोगों सोचो तो सही, अभी मुस्तफा की उम्र 6 बरस की है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तसव्वुर करो, जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है, दुनिया उसको किन निगाहों से देखती है, उसके सामने दुनिया का चैलेंज होता है कि उसे दुनिया में सरवाइव कैसे करना है, अपनी जिंदगी को लोगों से कैसे बचाना है। कोई कहता है बगैर बाप का है बिगड़ जाएगा, कोई कहता है बगैर माँ बाप का दुनिया में कैसे जिएगा। मगर मेरे हुजूर की हदीस सुनो, आमीना का लाल इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे सामने कोई यतीम आए तो किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार न करना, अपने बच्चे की पेशानी न चूमना, अपने बच्चे को दुलार न करना, इसलिए कि तुम बच्चे की पेशानी चूमोगे, यतीम को उसकी माँ का प्यार याद आ जाएगा, यतीम को उसके बाप का प्यार याद आ जाएगा। बल्कि आका करीम फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई यतीम दिखाई दे तो उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेर देना। यतीमों से प्यार करना आमना के लाल की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, अल्लाह हर बाल के बदले नेकी अता फरमाएगा। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फैसला हो गया, किसी अमीर की चूतियां सीधी करने में इज्जत नहीं है, किसी के सामने झुक जाने में इज्जत नहीं है। अगर इज्जत चाहते हो, यतीमों से प्यार करो, इसलिए कि नबी ने यतीमों से प्यार किया है। अगर वकार चाहते हो, गरीबों की मदद करो, इसलिए कि नबी गरीबों के बाबा हैं। हम यतीमों को चाहेंगे, हम गरीबों से प्यार करेंगे तो मुस्तफा मुस्कुराएंगे, और जिसको देख के नबी मुस्कुरा जाए उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम मशरफ, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बचल कर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, बात समझ में आ रही है? थोड़ा इको कम कराऊं, बोले बात समझ में आ रही है ना? बोले सुभान अल्लाह। आका करीम का पहला इम्तिहान, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, अभी आप वालिदा के शिकम में थे। दूसरा इम्तिहान, 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। अब मेरे हुजूर को जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश में लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका को पालना शुरू कर दिया। आका की उम्र जब 8 बरस की हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उलमा फरमाते हैं, हुजूर इस शान के साथ अपने दादा के जनाजे के पीछे जा रहे थे कि मक्का की हर औरत की आंखों में आंसू आ गए, हर जवान की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते थे, अब क्या बनेगा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का। ऐसे वक्त में जब जमाना मुस्तफा के लिए आंसू बहा रहा था, अबू तालिब ने मुस्तफा के सर पर हाथ रखा, फरमाते, भतीजे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करूंगा, मैं तुझे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा। अब अबू तालिब की संगत में, सोहबत में मुस्तफा करीम रहने लगे। आका करीम ने तिजारत को सीखा, आका करीम ने दुनिया को सीखा। अल्लाह अकबर सीखने के बाद जब मेरे हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, अल्लाह अल्लाह, आका ने पहला निकाह फरमाया हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से। नबी की उम्र 25 बरस की है, खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 बरस की है। निकाह किस अंदाज में हुआ? मेरे नबी जब 25 साल के हुए तो मक्का के लोग कहने लगे, मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद दयानतदार है। जब खदीजतुल कुबरा ने आका के बारे में सुना, आपके शोहर का इंतकाल हो गया था, आपने पैगाम भेजा, मोहम्मद से जाकर कहो खदीजा को मोहम्मद से मिलना है। मेरे नबी तशरीफ ले
गए। खदीजतुल कुबरा कहती है, ऐ मोहम्मद तुम मेरे माल की तिजारत करो, जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ तुमसे उसका डबल दूंगी। मेरे आका ने अल्लाह अकबर हाँ कर दी। नबी मुल्क शाम में खदीजतुल कुबरा का अल्लाह अकबर सामान तिजारत लेकर गए। नबी ने बड़ी जल्दी सामान को फरोख्त कर दिया। जब मेरे नबी मुल्क शाम से मक्का की जानिब लौटे, एक गुलाम ने आकर खबर दी खदीजतुल कुबरा, आमिना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का बेटा आ रहा है। हजरत खदीजा बाला खाने पे खड़ी हुई, क्या देखती है कि मोहम्मद धूप में चले आ रहे हैं और अल्लाह के दो फरिश्ते मोहम्मद के सर पे साया किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। जब खदीजा ने इतना देखा, मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। आपने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, मैसरा बता तो सही तूने मोहम्मद को कैसा देखा है? तो मैसरा के जुमले सुने। मैसरा कहते हैं, हजरत खदीजा कुछ न पूछो, मोहम्मद जब बाजार में जाते हैं तो मोहम्मद को देखकर बाजार के लोग कहते हैं अमानतदार आ गया है, सादी को अमीन आ गया है, अच्छा आ गया है, सच्चा आ गया है। मैसरा कहते हैं, मैंने हंसी तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं, मैंने अच्छे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। ऐ खदीजा, मोहम्मद जो गलियों से गुजरते हैं तो गलियां महकने लगती हैं, जब पहाड़ों से गुजरते हैं तो पहाड़ों से दूध और सलाम की आवाज आती है। जमील उर रहमान कादरी कहते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम मशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ईमानदारी से बोले, मेरी मेहनत में कोई कमी है? आप भी कमी ना करें, जोर से सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, जोर से बोले, मेरा लाशा भी कहेगा अल्लाह अकबर। आका करीम की उम्र 40 साल के करीब हुई। हम सोचते हैं अपने मकान के लिए, हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, हम सोचते हैं अपनी तिजारत के लिए, मगर आमिना का लाल ऐसा नहीं था। अल्लाह अल्लाह नबी सहले काबा में बैठ जाते, गौर फिक्र करते, परवरदिगारे आलम मेरी कौम का हाल बड़ा बुरा है, मेरी कौम शराबी है, मेरी कौम जुआरी है, मेरी कौम जानी है, ये बच्चियों को जिंदा दफन कर रही है, ये बेवाओं को मनहूसा समझ रही है। अल्लाह मेरी कौम में, मेरी कौम के अंदर इनकलाब पैदा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह रातों को मुस्तफा को ख्वाब नजर आते, नबी अच्छे अच्छे ख्वाब देखने लगे, मगर कमाल ये था नबी जो रात को देखते थे वो सुबह को अल्लाह मुकम्मल फरमा देता था। नबी जो देख रहे हैं सच देख रहे हैं। अब जब नबी की उम्र 40 साल के करीब हुई तो इसी मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल हिरा है। इसकी चोटी पे खार है जिसको दुनिया गारे हिरा के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह नबी गारे हिरा में तशरीफ ले जाते, 3 दिन तक इबादत करते, हफ्ते हफ्ते तक इबादत करते। खुद आका करीम फरमाते हैं, एक दिन गारे हिरा में उजाले हो गए, मैंने देखा नूरानी चेहरे वाला एक नौजवान गारे हिरा में आया। अल्लाह अल्लाह जानते हो ये कौन था? इनका नाम मकीन सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जिब्रील आए, आने के बाद मुझसे मुसाफा किया, फिर जिब्रील ने मुझको जोर से अपने सीने से लगाया। नबी फरमाते मुझे यूं लगता था मेरी पसलियां टूट जाएंगी। उसके बाद जिब्रील कहते इकरा पढ़िए। नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। जिब्रील ने दूसरी बार का इकरा पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब तीसरी मर्तबा जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जिब्रील ने एक आयत पढ़ी थी। अब आमिना का लाल गोया हुआ। नबी पढ़ते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये अल्लाह का सबसे पहला पैगाम है उम्मत मोहम्मद के लिए, सबसे पहली वही है उम्मत मोहम्मद के लिए। रब ने फरमाया पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर तुम्हें समंदरों का सफर करना पड़े तालीम हासिल करो, अगर तुम्हें आधी रोटी खानी पड़े तालीम हासिल करो। मगर देखो तो सही, जिस कौम को तालीम को अपना फेवर बनाना चाहिए था उनमें शराबी तो मिलेंगे, प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, जुआरी तो मिलेंगे, अफसर नहीं मिलेंगे, जानी तो मिलेंगे, मगर कुरान के पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। उम्मत मोहम्मद इनकलाब पैदा कर, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, जमाने को पैगाम दो। हम
تعلیم سے دور رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بچے مفتی بھی ہیں، ہمارے بچے عالم بھی ہیں، ہمارے بچے حافظ بھی ہیں، ہمارے بچے پروفیسر بھی ہیں۔ جب دنیا ہماری عظمتوں کو دیکھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، جب ہندوستان کا رہنے والا غلام ایسا ہے تو مدینے کا امام کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاعر کہتا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب میں غار ہرا سے واپس آیا تو میرے قلب پہ لرزہ طاری تھا، حضور کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ آقا کریم گھر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں میرے گھر والوں مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی اڑا دی گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد حضور سکون میں ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتی ہیں حضور ہوا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں خدیجہ ایسے ایسے غار ہرا میں واقعہ پیش آیا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں نہیں نہیں پیارے محمد، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ غریب و محتاجوں پہ پیسہ لٹا دیتے ہیں، آپ دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ ورقہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ محمد الرسول اللہ نے جب واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں محمد مبارک ہو مبارک ہو، اس لیے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آدم کے پاس آتا تھا، جو شیش کے پاس آتا تھا، جو ادریس کے پاس آتا تھا، جو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا، جو عیسیٰ روح اللہ کے پاس آیا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ان قریب اللہ آپ کو تاجدار رسالت بنائے گا، ان قریب آپ کو سید الانبیاء بنائے گا۔ محمد یاد رکھنا جب تم پیغمبر بنو گے مکہ کے لوگ تم پر ظلم کریں گے، ایک دن تمہیں مکہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے حضور نے اتنا سنا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی عرض کرتے ہیں اے ورقہ کہ مجھے اپنا عزیز شہر چھوڑنا پڑے گا، تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں تم ہی تھوڑی چھوڑو گے، اللہ نے نبی بنایا ابراہیم کو، ابراہیم نے چھوڑا اپنے بابل کو۔ جو پیغمبر نبی بنتا ہے، جو پیغمبر بنتا ہے نبی بنتا ہے، قوم انہیں ہجرت کے لیے مجبور کرتی ہے، مگر دیکھو تو صحیح پروردگار عالم نے نبی کو وہ دن بھی دکھایا، نبی مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے اور اللہ نے یہ عظمت بھی دی کہ اسی مصطفیٰ کو مکہ کا فاتح بنا کر مکہ میں واپس۔ امام کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے جن اسلامی بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی، اللہ کے بہترین حافظ، قرآن کا عامل، اس کے بعد حاجی و مفتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ جو لوگ اس محفل میں شامل ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھیں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔